Hello friends, welcome to Pulse Excel. So today in this video lecture, I am going to discuss Julia olefination reaction, and this name reaction is also known as Julia Lithgow olefination reaction. So the very first of all, that why we need to solve the Julia olefination reaction is, according to your actually PG courses like MSc course as well as a competitive exam like CSR, NET, GATE, SET examination point of view, this chemical reaction is really very important. So every year actually for the 4 marks, this Julia olefination reaction is come into the exam like CSR, NET. So for that purpose, I'm just going to cover this name reaction in this video lecture. So without wasting our time, let us just see that what is the Julia olefination reaction means. So as you all are always required some short trick and some short tips to solve the any name reaction. So here is the way that how you people are remember Julia olefination means exactly what. तो यहाँ पे हमें कुछ दो या तीन चीज़ें ही सिर्फ हमें याद करनी है. सो बाय रिमेंबरिंग दोज थिंग्स यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन मीन्स. Now in that, the first thing that you should keep in mind that whenever in any chemical reaction, okay, you will find out sulfone group, aldehyde group, any base or any electron donor metal, like for example NaHg, base example like butyl lithium, aldehyde group or SO2 group. So definitely that reaction is nothing but what your student जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन. तो ये समझ के ही चलना, मतलब जिसमें सल्फोन अल्डेहाइड है, बेस है, तो डेफिनेटली जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ओवर हियर इज दी, whenever we talk about this ओलिफिनेशन रिएक्शन, इसमें आपका कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट दी फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज ओवर हियर दैट here in the Julia olefination reaction you will get as a final product E alkene. मतलब यहाँ पे आपको हमेशा ट्रांस अल्किन ही मिलेगा. here you will never get like Z alkene or the cis alkene. तो यहाँ पे हमेशा आपको E alkene मिलेगा. ठीक है. तो हमेशा याद रखना Julia olefination मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड E alkene फॉर्मेशन. तो यही रिएक्शन है. और अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी याद होता है तो याद रखना सल्फोन है, अल्डेहाइड है, बेस और कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल रिएक्शन में दिखाई दे रहा है, तो वो जूलिया ओलिफिनेशन है. सो आई होप सो विद दिस टिप यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द जूलिया ओलिफिनेशन मीन. सो नाउ इट इज़ एक्चुअली केमिकल रिएक्शन यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री of phenyl sulfones with aldehyde or ketones means carbonyl group, generally olefins. So after actually alcohol functionalization, or we can say the reductive elimination using sodium amalgam or sometime the samarium iodide, the reaction is named after that French chemist. The name is given to this chemical reaction is Julia olefination reaction. So now let us first started with the जनरल रिएक्शन. हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं एंड देन लेटर ऑन वी सी दैट व्हाट इज द एग्जैक्टली मैकेनिज्म. सो हियर इज द जनरल रिएक्शन. सो दीज आर द एक्चुअली SO2 group, sulfone group is going to be present R, and this is the structure. Then now what are the reagent that must be present in the chemical reaction? So the very first butyl lithium, sometime it acts as a base or the nucleophile. Secondly definitely RCHO aldehyde group यहाँ पे. AC2O का मतलब है एसिटिक एनहाइड्राइड, जनरली वी यूज फॉर द एसिटिलेशन. एंड द फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल विच इज़ नथिंग बट दी NaHg. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे आप लोग ये सारे मतलब रिएजेंट को यहाँ पे देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये रिएक्शन जो है डेफिनेटली वो कौन सा रिएक्शन है, जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन है. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट विच यू विल गेट दैट इज व्हाट E अल्किन. तो यहाँ पे E अल्किन. ठीक है. अब यहाँ पे आप अगर प्रिसाइजली देखते हो तो जस्ट गिव अ नंबरिंग टू योर इनिशियल रिएक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने जैसे कि नंबरिंग दिया टू सल्फोन, जो हमारा जो ग्रुप थे उसको हमें नंबरिंग देना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट 1 2 3 एंड द फोर्थ. इफ यू सी द प्रोडक्ट साइड 1 2 3 4 वही रहेगा. सो SO2 जो ग्रुप है वो सिर्फ हमें हटाना है. और SO2 का जो आपका मतलब ये जो फर्स्ट जो है अटैच विद द R ग्रुप, वहाँ पर आपको क्या करना है,
डबल बॉन्ड अटैच करना है। एंड दिस आर ग्रुप विच इज़ नियरेस्ट टू SO2 उसको आपको हटा के क्या करना है, वहाँ पे आपको अल्डिहाइड का फंक्शनल जो ग्रुप है R डबल डैश वो आपको यहाँ पे क्या करना है, अटैच करना है। सिंपल। तो ये जनरल रिएक्शन है कि आपको ऐड कैसे करना है। Now let us explore through mechanism, because through the mechanism you can completely understand that कि मतलब कौन कहाँ से जा रहा है, what is actually migration, which group we are going to be replacing, and how you will get the alkene, and how the SO2 group are going to be removed. So let us start with the mechanism part student. Simply ये mechanism है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, once you identify the sulfone group in any reaction, अब आपको देखना है सल्फोन ग्रुप। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो दिस कार्बन हैविंग द 2 हाइड्रोजन विच इज़ अ हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। ना वाई दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज अगर मैंने इसमें सबसे जो पास जो रिएजेंट जो है ब्यूटाइल लिथियम, जैसे मैंने बेस को अप्लाई किया, बेस का रोल होता है क्या, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन। तो जैसे उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन आयन विल जनरेट एंड दैट कार्बन आयन इजीली स्टेबलाइज, तो यहाँ पे माइग्रेट करेगा, देन यहाँ पे तो इजीली वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, लोकलाइज हो रहा है। तो दैट्स वाई दिस विल बी द नोन एज व्हाट हियर, एसिडिक प्रोटॉन। सो फर्स्ट इनिशियली आई एम गोइंग टू ऐड द बेस ब्यूटाइल लिथियम। ओके, समटाइम इट ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्ट होगा, बट यहाँ पे वो बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ से प्रोटॉन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे कार्बन आयन होगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। व्हाट, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। तो जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे क्या होगा, कार्बन आयन फॉर्मेशन होगा। सो रिमेंबर इन द फर्स्ट स्टेप कार्बन आयन फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस। वंस कार्बन आयन फॉर्म, अब सेकेंडली क्या होगा, कार्बन आयन रिक्वायर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सो दैट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यू विल गेट फ्रॉम द अल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ पे अल्डिहाइड का ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो कार्बन है यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेट करेगा टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देन कार्बन डबल बॉन्ड O, तो दिस डबल बॉन्ड गेट माइग्रेट ओवर हियर एंड देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, व्हेन यू जस्ट गोइंग टू बी अटैच, कार्बोनिल पे जब अटैक होगा आपका कार्बन आयन का, तो सिंपली आपको स्टूडेंट क्या करना है, दिस ग्रुप SO2R डैश, ठीक है, ये पूरा ग्रुप आप क्या करो, वन साइड लिख दो। देन ये जो अल्डिहाइड जो ग्रुप है आप इजीली अटैच करें, तो वही मैंने किया है। इफ़ यू आर गोइंग टू लुक इट केयरफुली, आर ग्रुप यहाँ पे है, SO2R डैश लिख दिया। अब बचा क्या, यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर मैंने अटैच कर दिया, RCH, ठीक है, एज सच लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ, O नेगेटिव, बिकॉज एक ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आयन जनरेट हुआ। सो दिस इज यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो मैंने बेस यूज़ कर लिया, अल्डिहाइड तो यूज़ कर लिया। अब थर्ड है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट हियर स्टूडेंट, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में अब क्या होगा, एसिटिलेशन होगा। अगेन दिस नेगेटिव साइन जो है आपका यहाँ पे एनायन, दिस नाउ एनायन अगेन अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो आउट ऑफ दिस टू कार्बोनिल, एनी वन कार्बोनिल ग्रुप इज गोइंग टू बी अटैक बाय दिस एनायन, तो ये यहाँ पे जाके यहाँ पे ऑक्सीजन आयन का अटैक होगा। इमीडिएटली दिस बॉन्ड गेट माइग्रेट, तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा वो नेगेटिव होगा, या फिर इमीडिएटली क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन गेट डिटैच, तो ये यहाँ पे क्या होगा आपका स्टूडेंट, डिटैच होगा। एंड दिस ग्रुप COMe, उसे यहाँ पे हम बोलते हैं हम लोग एसिटिल ग्रुप, एंड दिस एक्चुअली OMe, ये पूरा ग्रुप वहाँ से क्या हट जाएगा, अटैच क्या होगा, डिटैच होगा। एंड देन वी विल नो दिस इज द एसिटिलेशन, सो यू कैन सी OAC, ठीक है। सो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, एसिटिलेशन किया। तो यहाँ तक हमारा काम हुआ। अब फोर्थ रिएजेंट हम लोगों ने क्या किया था, NaNaHg, मर्क्यूरी और सोडियम मेटल का काम क्या, दिस इज द व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल है। और दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल। तो जनरली जो रिएक्शन होता है वो क्या होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ पे हमें जगह क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, तो दिस ग्रुप विल बी वेरी इजीली लिविंग ग्रुप। तो SO2R यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। तो जैसे ही रिमूव होगा यहाँ पे प्लस साइन जनरेट होगा, ठीक है, कार्बोकैटायन है ना, तो यहाँ पे जैसे ही प्लस साइन जनरेट होगा दैट विल बी स्टेबलाइज बाय दिस इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज हाउ बाय दी
फर्स्ट. जैसे ही वो यहाँ पे रेडिकल फॉर्मेशन होगा, इमीडिएटली वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड मेथड. फिर से 1 इलेक्ट्रॉन जस्ट गोइंग टू बी अकोमोडेट एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, नेगेटिव साइन गेट जनरेट. नाउ दिस नेगेटिव साइन मतलब जो एनायन है दैट विल बी माइग्रेट ओवर हियर एंड इमीडिएटली OAC ग्रुप यहाँ से क्या होगा, माइग्रेट होगा. मतलब यहाँ से दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ से निकल जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेकिंग प्लेस एंड दिस इज हाउ यू विल गेट हियर E alkene. सो आई होप सो दिस इज़ अ वेरी रियली वेरी सिंपल मैकेनिज्म है. सबसे फर्स्ट कार्बन आयन फॉर्मेशन हुआ, बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, अल्डेहाइड ग्रुप गेट अटैच, इसको स्टेबलाइज कर दिया. जैसे ऑक्सी एनायन जनरेट हुआ, एसिटिलेशन किया हम लोगों ने. आफ्टर एसिटिलेशन ओके, इमीडिएटली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स के अटैक से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इजीली अल्केन ग्रुप मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज हॉट यू विल गेट डायरेक्टली दिस टू दिस what product. I hope so the reaction is going to completely understand, but still if you have any doubt regarding the mechanism, so you should definitely ask me the question at the end of this video. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि थ्रू आउट द एग्जाम्पल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम विदाउट गोइंग टू डीप की मेकानिज्म वगैरह सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होता, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाउ यू आर एबल टू सॉल्व. तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, इन द एग्जाम्पल नाउ सी दीज आर द क्वेश्चन विच इज़ कमिंग इन टू द एग्जाम. MSc का PG कोर्स में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. जिन्होंने रिएजेंट दिया था NaN बेस TM2 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन BZCl देन NaHA. अब ये सारे दिए थे मिथेनॉल बेस 71% ये रिएजेंट दिया हुआ था. एंड दीज आर द 2 कंपाउंड दे मेंशन इन द एग्जाम एंड दे आस्किंग द व्हाट इज द प्रोडक्ट. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट सी द प्रोडक्ट. जो हमारा रिएक्टेंट जो 1 है रिएक्टेंट 2 में, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो SO2PH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब सल्फोन है. ये ग्रुप अगर प्रॉपरली आप देखते हो तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, अल्डेहाइड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल है, बेस है, एवरीथिंग. तो डेफिनेटली एक क्या होगा, जूलिया ओलिफिनेशन होगा. ठीक है. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं. सो आउट ऑफ द 4 विच वन विल बी करेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी. ठीक है. PG कोर्स में तो आपके पास आंसर नहीं होते, बट MCQ में तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं. अब सिंपली अकॉर्डिंग टू आर ट्रिक मैंने जैसे बोला था, SO2 ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो यहाँ पे लिख दो, और जहाँ पे SO2 ग्रुप है वहाँ पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड करना है. सिंपल, मतलब विदाउट मैकेनिज्म. अगर एग्जाम में शॉर्ट टाइम में आपको सॉल्व करना है तो ये ट्रिक याद रखना है. अब हम लोग वैसे ही करते हैं ना. लेट अस काउंटिंग फर्स्ट कार्बन इन द SO2 ग्रुप. जो रिएक्टेंट है उसके काउंटिंग करते हैं. सो सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SO2 तक ही काउंट करना है. जस्ट रिमेंबर, बिकॉज ये वाला जो ग्रुप होगा विच इज अटैच विद द SO2 वो रिप्लेस होगा विद द अल्डेहाइड ग्रुप. ठीक है. तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मुझे यहाँ पे पहले तो क्या करना है, 10 बॉन्ड बना के लेने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है. लुकिंग एट केयरफुली, तो मैंने यहाँ पे 10 ग्रुप को क्या कर दिया, लिख दिया. अब उसके बाद 10 वाला जो ग्रुप है मेरा SO2 वो रिप्लेस होगा. वहाँ पे हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना. तो मैंने यहाँ पे देखो रेड से मार्क किया और मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया. उसके बाद हमें अब क्या करना है, अल्डेहाइड का जो ग्रुप है ना ये वाला R डबल डैश CHO ग्रुप नहीं, CHO को छोड़कर जो ये पूरा जो फंक्शनल ग्रुप जो है R डबल डैश, ये हमें डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, अटैच करना है. तो अब मैं यही करूँगी. तो ये R डबल डैश जो ग्रुप है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होगा. तो अब यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप छोड़ के ये जो पूरा मोइटी ये हमें अटैच करना है. तो अब फिर से काउंट करो, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को छोड़ दो, कार्बन काउंट करो. 1 2 3 4 1 2 3 4. तो 4 ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दो. 1 2 3 4 और 4 के बाद ये वाला जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया. एंड दिस इज ऑफ C. यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट. बस इतना ही करना है ना, आपको पूरा यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा. ओनली रिमेंबर द अटैचमेंट जो है वही आपको याद रखना है. SO2 का जो ग्रुप होगा वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है. फिनाइल जो ग्रुप है दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस विद द R ग्रुप फ्रॉम द अल्डेहाइड एंड यू विल गेट final product. So this is what the Julia olefination. Now I am just going to take the second example.
नाउ सी दिस इज अनदर एग्जांपल. अब यहाँ पे देखो सल्फोन ग्रुप है, बेस दिया हुआ है, अल्डिहाइड दिया हुआ है, डेफिनेटली जूलिया ओलिफिनेशन है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया. अब यहाँ पे क्या होगा, बेस का काम है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करना. कार्बन आयन जनरेट हुआ होगा, कार्बन आयन है दैट गोइंग टू बी स्टेबलाइज बाय द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द व्हाट ईयर अल्डिहाइड ग्रुप. तो मे बी यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एक यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा. तो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप को छोड़ के 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये ग्रुप मैंने पूरा अटैच कर लिया. और जो नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है, दैट मे बी अज्यूम करो बिकॉज ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, दैट में भी अज्यूम करो कि वो यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ विद प्रोटोनेशन, तो हमें यहाँ पे ओ एच कुछ तो ऐसे मिलेगा. तो ऑप्शन देख लेना. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ए. अब ये जो हमें यहाँ पे ग्रुप मिला है इसमें हम लोगों ने क्या डाला है, MaSO2Cl डाला, और सेकेंड हमें क्या डालना है, NaHg. अब यहाँ पे जब ऐसे रिएजेंट आते हैं ना, सो डोंट स्ट्रेस्ड आउट कि अभी MaSO2Cl का रोल यहाँ पे क्या होगा, वेर इज द अट्टा, जस्ट लुकिंग केयरफुली एट द सेकेंड रिएजेंट. अब सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है आपको बेस अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल, और यहाँ पे सल्फोन ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है. तो सिंपली क्या करना है, फिर से वही SO2Pa जो ग्रुप है वो हटाना है, वो डबल बॉन्ड आपको अटैच करना है. सो नाउ जस्ट सी द कार्बन, अगेन कार्बन देखना है आपको, काउंट करो 1 2, ये 3 वाला कार्बन है तो अटैच करो 1 2 3. और जो मैंने बोला था SO2 जो ग्रुप है वहाँ पे आपको डालना है डबल बॉन्ड. सो सी रेड से मैंने मार्क किया, मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया. अब अल्डिहाइड जो वाला ग्रुप था मेरा रिमेनिंग, वो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे जो ग्रुप अटैच कर दो बस, और कुछ नहीं करना है आपको. रिमेनिंग द वॉट एवर द थिंग्स एंड दिस इज वॉट द प्रोडक्ट बी यू विल गेट. बाकी सारी चीज़ें भूल दो कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. दिस इज वॉट अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म आई जाओगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा. फाइनली भी चाहिए तो आप एक बार ट्राई कर लेना. सो इफ़ यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म केयरफुली, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने एज अ होमवर्क आपको दिए हुए हैं. आपको अगर ये रिएक्शन समझ में आया है, सो जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. सो ये सॉल्व कर, अभी ये भी यहाँ पे देखो SO2PH है, दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप. तो ईजिली अगर मुझे सॉल्व करना रहेगा तो कैसे करूँगी, देखो ये यहाँ पर है SO2 ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. अब PH जो है, PH की जगह पे CHO छोड़ के ये वाला बॉन्ड आएगा, तो ये आपका यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा. सॉरी ये मैंने सॉल्व कर दिया. तो ये जो है आपका 100% प्रोडक्ट फॉर्म होगा. यहाँ पे क्या होगा आपका, ई एल्केन बनेगा. और यहाँ पे देखो रिएजेंट एन ब्यूटाइल लिथियम है, अल्डिहाइड है, एसिटिलेशन हुआ है एंड इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल. यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम है, एसिटिक एनहाइड्रेट एंड इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल. तो डेफिनेटली जूलिया ओलिफिनेशन है. आइडेंटिफाई करो CHO यहाँ पे SO2PH है. सो जस्ट अटैच इट एंड जस्ट टेल मी द व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है. सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. And if you really like this video, so don't forget to subscribe us. And if you have any doubt regarding this Julia olefination reaction, so definitely ask me. I definitely resolve your all the question. So once again thank you so much student, and keep watching and keep studying. Thank you. Like a Hellcat.